الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له نشهد ان لا اله الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ ربک فحدث. فحدث. سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد دادا فی الملہ اصلاۃ دائمات بدوام ملک اللہ جزا اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم خدانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار رہ تو بخشا فروغ وادی سینہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طاہر. آصف صاحب کے والد بزرگوار اللہ دتا صاحب اور ہمارے عالم اسلام کے ابھرتے ہوئے ہونہار نوجوان جرمن دیار غیر میں اسلام کا علم لے کر خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم آج جناب توحہ چیمہ صاحب اور ہمارے یار محترم سلطان المعظم قاضی صاحب محمد رمضان قاضی صاحب راشد صاحب آصف صاحب اور دیگر جتنے دو صاحباب یہاں تشریف فرما ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کی حاضری قبول مقبول فرمائے. گفتگو کچھ اس طرح شروع کرتا ہوں کہ مسجد نبوی کا صحن ہے. تصور کریں کہ مسجد نبوی کا صحن ہے اور آج سے 1400 سال پہلے کیسا صحن ہوگا جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نصف نفیس اپنے حجرے میں تشریف فرما ہیں اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین صحن میں گول دائرہ ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے عالم میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کر آتے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بشارت دیتے ہیں کہ آپ کے جو غلام مسجد نبوی میں جو بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اور ان سب کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ان پر اللہ کی رحمت ان پر. یہ بشارت لے کر جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یا رسول اللہ تھوڑا سا آپ اپنا پردہ تو ہٹائیے. جو پردہ جہاں سے کھڑکی تھی نا کہتے ہیں آپ ذرا پردہ تو ہٹائیے. آپ نے پردہ جیسے چلمن کو ہٹایا تو کہا دیکھیے آپ کے صحابہ اکرام کیا کر رہے ہیں. اللہ کو بہت آپ ان کی ادا پسند آئی. کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جو ہوئی ہے میلاد مصطفیٰ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. مسجد نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف فرمائے. جبرائیل امین تشریف لے کر آئے ہیں اور اللہ پاک کی وہ بشارت تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اپنے حجرے مبارک سے ان نورانی اقدام کرتے ہوئے جب آتے ہیں اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے جب آتے ہیں صحابہ
लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। खड़े हो जाते हैं। आप ने कहा सब तशरीफ रखें, बैठे रहें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, ऐ मेरे साथियों, बताओ आप लोग क्या कर रहे हैं? तो सब एक साथ होकर कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, हम उस रब्बे ज़ुल जलाल का एहसान अदा कर रहे हैं कि उसने हमें अपने प्यारे हबीब को, जो सारी कायनात की सबसे बड़ी नेमत को, वो हमारे हवाले किया और उनके जरिए से हमें हिदायत अता फरमाई। सुभान अल्लाह। हम ये करें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या वाकई आप लोग यही जिक्र कर रहे थे? सहाबा ने एक आवाज़ कहा, या रसूलल्लाह, हाँ यही जिक्र कर रहे थे। फिर हुजूर ने कहा, अच्छा तो फिर एक काम करो, तो फिर मैं तुमसे हल्फिया बयान लेना चाहता हूँ। क्या वाकई तुम लोग यही कह रहे थे कि अल्लाह का हम पर एहसान है कि उस रब्बे ज़ुल जलाल ने हमें तमाम कायनात के आका और मौला खातमुन नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भेजकर हमें हिदायत का सामान किया, और यही आप जिक्र कर रहे थे? तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, हम हल्फिया बयान देते हैं कि हम अल्लाह का और अल्लाह के हबीब का शुक्र बजा ला रहे थे कि हमें जो दीन मिला है वो आप ही के सदक़े से, हमें अल्लाह का तारुफ हुआ है वो आप ही के सदक़े से, हमें जो कुरान मिला है वो आप ही के सदक़े से, हमें जो नमाज मिली है वो आप ही के सदक़े से, हमें जो रोज़े मिले हैं वो आप ही के सदक़े से, हमें जो माँ बाप की इज़्ज़त वो तकरीम करने का जो हमें सबक मिला है वो आप ही के सदक़े से, हमारे पड़ोसियों के हुकूक अदा करने का जो सबक मिला है आप ही के सदक़े से, हमारे जीने का सलीका हमें मिला है वो आप ही के सदक़े से, हमारे उठने का जो सलीका मिला है आप ही के सदक़े से, तमाम दुनिया की नेमतें नसीब हुई हैं वो आप ही के सदक़े से। या रसूलुल्लाह, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए तो सुनो सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने बगैर किसी हिसाब और किताब के मुझे बशारत दी। जिब्रील अमीन तशरीफ लेकर आए, उन्होंने कहा कि मेरे हबीब तेरे दीवाने तेरा भी जिक्र कर रहे हैं और मेरा भी जिक्र कर रहे हैं, और मैं इन सबको बख्श देता हूँ और बगैर किसी सवाल और जवाब के इनको जन्नत अता करता हूँ। अल्लाह, आज भी हम जो सुन्नत अदा कर रहे हैं वो मदीने पाक में ही सुन्नत अदा कर रहे हैं। और आसिफ साहब ने जो आज नशिस्त बुलाई है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उनके वालिद बुजुर्गवार तशरीफ लाए हैं, सरकार का नाम का लंगर पकाए हैं, हमारी रूह को ताजगी होगी है। आज जो है मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि मेरे सामने कौन से प्यारे प्यारे यहाँ पर शख्सियात तशरीफ फरमा हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि सब के सब सरकार दो आलम के गुलाम हैं, गुलाम हैं, रसूल के गुलाम हैं, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। ये जो गुलाम हैं, इन गुलाम, ये वो गुलाम है जो बादशाहों के बादशाह हैं। मेरे साथ जो बैठे हैं ये शहजादे, ये किस नेक माँ के शहजादे हैं। आज इनकी वालदा माजदा भी मदीने पाक में आई है। दुआ करो कि उस माँ को भी अल्लाह सलामत रखे, उस माँ के शहजादे को भी अल्लाह सलामत रखे। वो कैसी माँ है जिस नौजवान को जो है जन्म दिया है कि जिसने दियारे गैर में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का परचम लहरा रहा है। आप जानते हैं, वरना आज का नौजवान नाच गाने का शौकीन, आज का नौजवान, जैसे कि आप कह रहे थे अल्लामा इकबाल का वो शेर, आपको याद नहीं आया? वो अल्लामा इकबाल का शेर है कि गुलामी पे भी, यूरोप की गुलामी पे भी रजामंद हुआ तू, यूरोप की गुलामी पे भी रजामंद हुआ तू, मुझको तो गिला तुझसे है यूरोप से नहीं। यूरोप में रहकर इस्लाम का परचम उठाना और यहाँ पाकिस्तान में रहकर, हिंद में रहकर, बांग्लादेश में रहकर और हिजाज मुक़द्दस में रहकर यूरोप की गुलामी इख्तियार करना, हाय अफसोस, अफसोस का मुकाम है। क्योंकि अल्लामा इकबाल ने दूसरी तरफ कहा, रगों में वो लहू बाकी नहीं है, वो जुस्तजू वो आरज़ू बाकी नहीं है, नमाजो कुर्बानी, नमाजो रोज़ा वो कुर्बानी, वो हज, ये सब बाकी है मगर तू बाकी है।
عزیزان گرامی، غلام بننا ہے سرکار کے، سچے غلام بننا ہے، پکے غلام بننا ہے، اور کس کے نام پر ہمارا جینا اور مرنا ہے؟ دنیا کے کسی شے پر ہمارا جینا اور مرنا نہیں، نہ ملک پہ، نہ وطن پہ، نہ خاندان پہ، نہ قبیلے پہ، نہ رشتے پہ، نہ ناطے پہ، نہ علاقے پہ، نہ عضویت پر ہمیں جینا اور مرنا ہے حضور کی رسالت پر، خدا کے نام پر اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے شان پر، اللہ کے نام پر، حضور کی شان پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا ہے، تاجدار ختم نبوت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ اللہ نے یہ زبان کس لیے دی ہے؟ اللہ نے یہ آنکھیں کس لیے دیے ہیں؟ اللہ نے یہ ہاتھ کس لیے دیے ہیں؟ اللہ نے یہ پیر کس لیے دیے ہیں؟ اللہ نے یہ عقل کس لیے دیا ہے؟ اللہ نے یہ شعور کس لیے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دیا ہے کہ اللہ کے احکامات کی پابندی کرو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، حضور کی صورت حضور کی سیرت اختیار کر کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم کو دنیا میں منوانے کے لیے، دنیا میں کوئی اور منوانے کے لیے نہیں ہے۔ اگر منوائے جانے والی اگر ذات ہے اس پوری کائنات کو، ایک ہی ہستی ہے، وہ آقا دو جہاں حضور اکرم محمد مصطفیٰ سرور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عزیزان گرامی، وقت ملتا رہے گا، ساتھ ہم آپ کے رہتے رہیں گے، لیکن جو آیت کریمہ تلاوت کیا ہوں وہ اما بنعمتی ربک فحدث کیا ہے؟ اور اپنے اس رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ کس کا چرچا کرو؟ کسی دنیا دار لیڈر کا چرچا نہیں کرو، کسی دنیا کے جو ہے وجاہت کا چرچا مت کرو، دنیا کی کسی خواہش کا چرچا مت کرو، دنیا کے کسی بینک بیلنس کا چرچا مت کرو، کسی جو ہے بنگلوں کا چرچا مت کرو، دنیا کی کسی اور کافروں کی غلامی کا چرچا مت کرو۔ تم جس کے غلام ہیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نعمت عظمیٰ ہے۔ کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے؟ اللہ دتا صاحب، اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دیا، یہ بھی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ناک دیا، یہ بھی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ بھی دیا، نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے پھل فروٹ دیا، یہ بھی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج دیا ہے، یہ بھی نعمت ہے، زمین اور آسمان دیا، یہ بھی نعمت ہے، شجر و حجر دیا، یہ بھی نعمت ہے، جمادات نباتات دیا، یہ بھی نعمت ہے، اور تمام ماں اور باپ دیا، یہ بھی نعمت ہے، تمام جو ہے بزرگ دیا ہے، والد دیا ہے، اور جو ہے خدام دیا ہے، علماء دیا ہے، مشاکین دیا ہے، متبرین دیا ہے، اور مقرین دیا ہے، محبین دیا ہے، اور اشاق دیا ہے، اور اولیاء دیا ہے، غوث دیا ہے، قطب دیا ہے، ابدال دیا ہے، اور جو ہے معمور بن اللہ دیا ہے، اور جو ہے تمام جو ہے اللہ والے دیا ہے، اور پھر جو ہے ہمارے لیے امیر المجاہدین بھی دیا ہے۔ لیکن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم کو چرچا اگر کرنا ہے تو وہ نعمت عظمیٰ کا چرچا کرنا ہے۔ وہ نعمت کون سی ہے؟ یہ ساری کائنات میں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن ساری کائنات کی سب سے عظمت نعمت کون سی ہے؟ وہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے ہاں، اگر آپ کسی سے پوچھو کہ کوئی اپنا جو ہے اپنا حبیب کوئی کسی کو دیتا ہے کیا؟ کوئی اپنا حبیب کسی کو دیتا ہے کیا؟ کوئی جو ہے اپنا جو نقیب ہے وہ کسی کو دیتا ہے کیا؟ اپنا جو قربت والا کسی کو دیتا ہے کیا؟ اپنا دل کسی کو نکال کر دیتا ہے کیا؟ ارے اللہ وہ کیسا اللہ ہے جس نے اپنے حبیب کو ہمارے پاس دیا؟ سبحان اللہ۔ تو اللہ جو ہے اپنے حبیب کو ہمارے پاس دیا ہے، تو اپنے حبیب جو اللہ کے حبیب ہیں، تو اللہ کے حبیب ہیں، تو پھر وہ حبیب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ ماہ ربی ہے۔ ربی کے معنی کیا ہیں؟ ربی کے معنی یعنی کہ عنوان سے عنوان بہت دور چلا جاؤں گا، اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ربی کے معنی ہے بہار کے۔ ربی کے معنی بہار کے۔ تو کون سی بہار؟ ربیع الاول، اور الف اور لام یہاں پہ اختصاص کا ہے۔ اب یہ علمی گفتگو بھی مشکل ہو جائے گی۔ الف یہ کئی الف لام ہیں، 6 قسم کے الف لام ہیں، تو یہاں پر جو الف لام ہے ربیع الاول یعنی کہ وہ بہار جو اختصاص کے ساتھ ہے، جو خصوصیت کے ساتھ ہے، جو افضلیت کے ساتھ ہے، جو اکملیت کے ساتھ ہے، جو کاملیت کے ساتھ ہے، جو مکمل کے ساتھ ہے، جو الوہیت کے ساتھ ہے، جو بڑے کمال کے ساتھ ہے، تو وہ کون سی ہے؟ اس سے پہلے اور کوئی بہار نہیں۔ آدم بھی آئے وہ بہار نہیں، نوح بھی آئے وہ بھی بہار نہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے وہ بھی بہار نہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی آئے وہ بھی بہار نہیں، لیکن کون سی بہار ہے؟ یہ تمام جہانوں کی بہاروں کی بہار محمد مصطفیٰ کی آمد کی بہار ہے۔ یہ ربیع الاول ہے، ربیع الاول ہے۔ تو یہ اختصاص کے ساتھ خالص
पहली बार मोहम्मद मुस्तफ़ा की आमद को कहा जाता है। ये रबीउल अव्वल, ये रबीउल अव्वल में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, जो नेमत उज़्मा है। मैं सिर्फ एक वाक़े के साथ अपनी गुफ्तगू ख़त्म करना चाहता हूँ। इतना यानी कि जैसे दरिया बहती है, इससे गुफ्तगू का एक समंदर आ रहा है, लेकिन उसको बयान करते बैठो तो सुबह हो जाएगी, और सुबह तो क्या सारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, ये बयान ख़त्म नहीं होगा। लेकिन सिर्फ एक वाक़े पर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करना चाहता हूँ, एक वाक़े पर। वो कौन सा वाक़या है? आइए रसूल करीम अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आप मबूस हुए, आप जब तशरीफ़ लेकर आए और आपने अपना 40 साल की उम्र मक्कतुल मुकर्रमा में आपने गुजार दिया, आपके अखलाक को, आपके किरदार को, आपके गुफ्तार को, आपके चलने को, आपके फिरने को, आपके बैठने को, आपके उठने को हर कोई कहता था अमीन है सादिक हैं, अमीन है सादिक हैं, अमीन है सादिक हैं। और हमारे चीमा साहब ने कहा कि अगर दुनिया में किसी की इज्जत और तौकीर है तो वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हुजूर की इज्जत करेगा और उसी की इज्जत होगी, जो हुजूर की इज्जत और आपकी तकरीम नहीं करेगा उसकी इज्जत और तकरीम नहीं होगी। तो रसूल करीम अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब 40 साल की उम्र में आप जिस वक्त नबूवत का ऐलान फरमाते हैं, इजहार फरमाते हैं, तो आप ज़रा सा सोचिए कि जो आपके रफ़ीक थे, जो आपके दोस्त थे, आपको जो सादिक कहते थे, जो आपको अमीन कहते थे, आपके ऊपर जो मेहरबान होते थे, वही आपके कबीले वाले, और वही जो अबू लहब जो पत्थर उठाकर फेंकता था, यही वो अबू लहब था जिस वक्त रसूल करीम अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आपका नूर का जब ज़हूर हुआ तो आपकी लौंडी सोबिया दौड़ते हुए जाके कहती है, ए अबू लहब आपको भतीजा मुबारक हो, हज़रत अब्दुल्ला को बेटा हुआ है, बीबी आमिना को ऐसा नूरानी प्यारा लाडला शहजादा पैदा हुआ है। तो जैसे ही उसने आकर मुबारकबादी दी, जो उसी तरह उंगली उठाकर अबू लहब ने कहा, जा मैं तुझे आज़ाद कर दिया। तो वो आप देखें पूरा उनका जो है जिस्म अजाब में होता है, लेकिन उस उंगली को अजाब नहीं होता, जिस इशारे से उन्होंने जो है खुशी मनाई थी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो ऐज़ान गिरामी अपने अजीज़ व अक़ारिब सब मुखालिफ हो जाते हैं, और हुजूर अकरम अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ देखिए, हुजूर के गुफ्तगू का अंदाज़ देखिए, हुजूर के यानी कि तबलीग का अंदाज़ देखिए। उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलूहुम बिल्लती हिया अहसन। अल्लाहु अकबर। अरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कुरान करीम के अमली पैकर हैं, तो कैसे उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा, जब आप नबूवत का जब ऐलान कर दिए हैं तो आप मक्के की गलियों में जब तबलीग के लिए निकल रहे हैं, मुख्तलिफ मकामात पे जा रहे हैं, मुख्तलिफ मेलों में जा रहे हैं, मुख्तलिफ ठेलों में जा रहे हैं, और इलाए कलमतुल हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पेश कर रहे हैं। ऐसे आलम में क्या क्या जुल्म व सितम आप पर नहीं सहे, क्या क्या आपने बर्दाश्त नहीं किया, यानी कि ऊँट की ओझड़ी आप सजदे में होते ऊपर डाल दिया जाता, और आप पर जो है किस तरह कांटे बिछाए जाते, और आप पर क्या क्या तकालीफ आपको दिए जाते हैं। अल्लाह अकबर। सब्र का वो पैमाना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था ताइफ के मैदान में कि किसी नबी को इतनी तकलीफ नहीं थी मेरी उम्मत ने जितनी मुझे तकलीफ दी है। अल्लाह अकबर। लेकिन रहमतुल आलमीन हैं। कौन है? रहमतुल आलमीन हैं। अब आप देखिए एक वाकया जो बयान कर रहा हूँ वो ये है कि आज हम सिर्फ नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन करके नहीं उठना है, बल्कि आज वो अमल अपने दिलो दिमाग में पेवस कर कर हमको भी उस तरीके पे ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता हो जाए। वो क्या है? वो ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की वादियों में गुजरते हुए जा रहे हैं तो क्या देखते हैं? बहुत दफ़ा सुना भी होगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी के हालात को जितना सुनते रहोगे अपने आप को उतना संवारते रहोगे। जब आप गुजर रहे हैं तो क्या देखा कि एक बुढ़िया रास्ते में बैठी है और सामान को बांधे हुए बैठी हुई है। सामान वजनी है, दो यानी कि थैले बांध कर बैठी है, दो कार्टून बांध कर बैठी है। तो आप वहाँ से गुजरते हुए उस बुढ़िया से, उस माई से आपने कहा, ए माई
क्या वजह है कि तुम यहाँ रास्ते में ये सामान लेकर बैठी हैं? तो वो माई कहने लगी कि बेटा मैं बहुत बूढ़ी कमज़ोर हो गई हूँ, मैं ये सामान लेकर मक्के से दूर अपने अजीज़ों के पास जाना चाहती हूँ, तो कोई है जिसको मैं अपनी उजरत दूँ, मैं उसको पैसे दूँ कि ये मेरा सामान उठाए और वहाँ तक पहुँचा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों के मावा, यतीमों के मलजा, हाँ ज़ईफ़ों के मावा, किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा माई क्या ये सामान मैं उठाकर पहुँचा दूँ? हाँ मेरे सोना, अगर तू पहुँचा दे मैं तेरे को पैसे दे दूँगी, मैं जिन्हें तू पैसे चाहेंगे मैं दे दूँगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सामान, एक सामान अपने सर पे उठाया और एक सामान अपने हाथ में लिया और लेकर आप चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। रास्ते में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या वजह है तू मक्के छोड़कर तू यहाँ से जा रही है? तो वो बुढ़िया कहने लगी, अरे बेटे तुझे नहीं मालूम कि यहाँ पर एक नया नबी आया हुआ है और वो नया नबी कहता है कि ये लात को मत मानो, उज़्ज़ा को मत मानो, मनात को मत मानो, हमारे 360 खुदा जो खाने काबा के अंदर हैं उनकी परस्तिश मत करो। ये हवा का जो पूजा, हम हवा की जो हवा की आग की पानी की जो पूजा करते हैं, हम जो है देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो कहता है कि नहीं ये सब शिरक है। वो कहता है वहदहू ला शरीका लहू, वो एक है उसके सिवा कोई शरीक नहीं। वो कहता है कुल वल्लाहु अहद, वो एक है दो नहीं। वो कहता है कि ये छोड़ो माबूदाने बातिल, एक अल्लाह की तरफ आ जाओ। वो ये दावत देता है। और तो फिर वो जो है सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो जादूगर है, जब वो बात करता है तो उसका असर हो जाता है और उसके असर में सब जो लोग वो मैं हो जाते हैं। तो मैं इसलिए जा रही हूँ कि कहीं वो मुझे टकरा ना जाए, कहीं वो मिल ना जाए मुझे और उससे मेरी गुफ्तगू हो जाए तो उसका जादू का असर मुझ पे हो जाए। तो मैं सामान उठाकर मक्के के बाहर जा रही हूँ, सामान उठाकर मक्के के बाहर जा रही हूँ कि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, ना मुझे उसकी शक्ल देखने पड़ी, ना उसकी शक्ल मुझे देखने पड़ी, ना उसकी गुफ्तगू मैं सुनूं, ना उसकी गुफ्तगू मैं सुनूं, ना मैं कुछ उससे जो है हम कलाम हूँ। तो लिहाजा उस जादूगर से बचकर मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। अब जरा सोचिए अजीज़ाने गिरामी ज़रा सोचिए कि आपके दिल पर क्या गुजरती होगी कि अगर आपको कोई तकलीफ दे, अगर आपको कोई जो है सताए और आपके वालिद को कोई सताए, आपके अजीज़ को कोई सताए, आपके बुजुर्गों को कोई सताए, आपके बुजुर्गों को कोई गाली दे और आपके ऊपर गलत तोहमत बांधे और आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा दे, झूठे इल्ज़ाम तराशी करते रहे, क्या अल्लाह को नहीं मालूम कि आपका मुकाम क्या है? क्या अल्लाह के नहीं मालूम आप कौन हैं? क्या अल्लाह क्या कोई दुनिया में कोई ऐसा शख्स है ये समझता है कि मैं अल्लाह के मुकाम पे हूँ, कि मैं इसके दिल के बात को जानता हूँ? नहीं, कोई नहीं जानता। अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते हैं कि क्यों कौन किस मुकाम पे होता है, उसकी हस्ती क्या है, उसका मुकाम क्या है, उसकी नीयत क्या है, उसका ईमान क्या है, उसका तकवा क्या है, उसकी तहरत क्या है, उसकी परहेज़गारी क्या है, वो कौन जानते हैं? अल्लाह उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। लेकिन देखिए दुनिया में झूठे इल्ज़ाम लगाने वाले, चाहे वो मक्का हो रहते हुए हो या मदीने में रहते हो, चाहे पाकिस्तान में रहते हो, चाहे किसी इंग्लैंड में रहते हो, लेकिन आज हर ज़माने में जो है निफाक पैदा करने के लिए एक दूसरे पर इल्ज़ाम डालते हैं ताकि जो है यानी कि दिल टूट जाए, आपस में जुदा हो जाएं, आपस में नफरतें हो जाएं, आपस में अदावतें हो जाएं। लेकिन जो मिलाने वाला जो जोड़ने वाला होता है वो अल्लाह मिलाप चाहता है और शैतान फूट जाता है। आक़ाए दो जहां खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इंसानों को मिलाने वाला बनाया है। अल्लाह मिलाने वाला, मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला, उल्फत करने वाला, रहमत करने वाला बनाकर भेजा। अब जरा सा देखिए रसूल करीम सल्लल्लाहु सारी गुफ्तगू को सुन रहे हैं, लेकिन जो है ये नहीं कह रहे हैं कि मैं वही मोहम्मद हूँ जिसको तू बुरा कह रही है। आप उसका सामान लेके जा रहे हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शराबोर हो गए हैं, पसीना निकल रहा है। आप उसका सामान लिए मक्के के बाहर जिस वादी में उस बुढ़िया ने जो बताया था वहाँ पर वो मकान के पास पहुँचते हैं और कहती है कि सामान यहाँ उतार दो बेटा। आप सामान वहाँ पर उतार देते हैं। सामान रखने के बाद जब आप वापस जाने लगते हैं तो कहते अच्छा बेटा ये बताओ कि उजरत कितनी हुई है, कितने पैसे हुए बेटे, बताओ तो सही। रसूल करीम अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सरोरे कौनैन खातम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं आप ज़ईफ़ हैं, आप कमज़ोर हैं, आपसे क्या पैसे लूँ? नहीं, आप अपने पास पैसे रखें, आपकी ज़रूरत के लिए काम आएंगे। बस मैं अब जा रहा हूँ, मेरा वक्त हो गया है। जब आप निकल के जब 2 कदम आगे बढ़ाते हैं तो दौड़ के आके कहती है बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, मैं एक बात पूछना भूल गई। बोले हाँ बताओ कि क्या बात है? बेटा
तो बेटा तुम्हारी माँ कितनी अच्छी होगी कि तुमको जो है ऐसा बाअखलाक, ऐसा बाकिरदार, ऐसा ऐसा इंसानियत का मोहसिन आपको जो है बनाकर भेजा है। बेटा बेटा मेरे सोने, मेरे चंदा, मेरे हीरे, मेरे मोती, बताओ तोड़ा ना की है, तोड़ा सोना तोड़ा ना की है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा जो कसीदे तुम जिसके पढ़ रही थी रास्ते में, ये वही मोहम्मद है। इतना कहना था कि वो बुढ़िया उसके खम्भों में गिर जाती है और कहती है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ऐज़ान गिरामी, किरदार से और गुफ्तार से दुनिया पहचानती है, तुम्हारे किसी बातों से नहीं पहचानती। तो हमारा किरदार ऐसा होगा कि दुनिया तुम्हारी देखती है, तुम्हारी गुफ्तगू को भी देखती है, तुम्हारे चलने को भी देखती है, तुम्हारे बात करने को भी देखती है, तुम्हारे खाने और उठने बैठने को भी देखती है। किसी की जो है ऐसी ताज़ीम नहीं होती, तुम्हारे हर किरदार को दुनिया देखती है। तुम खुली जब किताब होगी तो फिर वही तुम्हारे सामने शर्मिंदा होंगे, वही तुम्हारे सामने तायब होंगे। तो ऐसे ही जो है अपने किरदार को, अगर उस घराने वाला कोई है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वाला, तो उसको तो अला वजहुल कमाल हुजूर के नक्शे कदम पे चलना होगा, अला वजहुल कमाल। और तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाने वाले से भी तुमको मोहब्बत करनी होगी, क्योंकि तुम्हारे नाना का कलमा पढ़ता है, तुम्हारे नाना का कलमा पढ़ता है, तुम्हारे और किसी का नहीं। तो लिहाजा जिसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा तुम उससे मोहब्बत रखो। लेकिन फिर किस बात से तुमको दुश्मनी होनी चाहिए, किस बात से तुमको नफरत होनी चाहिए? वल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्दु लिल्लाह। एक ही है, वो है ताजदार खत्म नबूवत, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत पर जिसका ईमान नहीं है, और जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबूवत का दावा करता है और वो दावा जलील करता है और वो काफिर और काज़ी वो दज्जाल करता है, तो फिर उससे हमारी जो है नफरत होगी, उससे हमारी अदावत होगी, उससे हमारी जंग होगी, उससे हमारी जो है उससे हमारी नफरत होगी। हमारी मोहब्बत हुजूर से प्यार करने वालों से नहीं होगी, हुजूर से हमारी नफरत, हुजूर से मोहब्बत करने वाले, हुजूर से फना होने वाले, हुजूर में मर मिटने वाले, इन जो है दिलों को मिलाने वालों से हमारी नफरत नहीं होगी। हमारी नफरत जो है खुदा उसके रसूल के दुश्मनों से होगी। तो ऐज़ान गिरामी, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है। आज हम अपने पड़ोसियों से भी पाकिस्तान में लड़ते होंगे, अपने क्लास में जो स्कूल में पढ़ते हैं उन बच्चों से भी हमारी दुश्मनी होगी, हमारी दुश्मनी जो है गली कूचों में भी होगी, हमारी दुश्मनी जो है आपस में जो है कोई सिलसिले में है तो सिलसिलों में भी अगर हमारी कोई दुश्मनी होगी। लेकिन सारी दुश्मनियाँ ख़त्म करके एक प्लेटफॉर्म पे आना है, वो ये है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अलम बुलंद करो कि बन जाओ मुसलमानों तुम फौजे रसूलुल्लाह, बन जाओ मुसलमानों तुम फौजे रसूलुल्लाह, इस्लाम की खिदमत को तैयार हो बिस्मिल्लाह। बन जाओ मुसलमानों तुम फौजे रसूलुल्लाह। किसकी फौज बनना है? रसूलुल्लाह की फौज। जब रसूलुल्लाह की फौज बने तो रसूलुल्लाह सारे जहानों के लिए, तो सारे दुनिया के मुसलमान रसूलुल्लाह की फौज बगैर तनख्वाह के। बाकी फौज तनख्वाह लेती है ना। हर कलमा गो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा फौजी है जो बगैर किसी तनख्वाह के, कोई मुल्क उसको तनख्वाह नहीं देता, हुजूर के गुलाम को कोई मुल्क तनख्वाह नहीं देता। मुसलमान बगैर तनख्वाह का हुजूर का गुलाम फौजी है। दुनिया के किसी खित्ते में भी नामूसे रिसालत का जब ऐलान होता है तो मर मिटने के लिए, चाहे वो जर्मन हो, अमेरिका हो, जापान हो, चीन हो, हिंद हो, किसी और मुकाम पे भी हो, तो अल्लाह ताला सबको जो है सारे मुसलमानों को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त, रसूल करीम